بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ عز و جل کی تعریف و توصیف کے بعد درود رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لامکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین محوشہ ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ ترمائے دورہ سرخیل زہرہ جمالا جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ماتوا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزتوں کی مسندوں پر جلوہ گر معزز و مکرم سادات اعظام برادر گرامی سید ناظم شاہ صاحب قبلہ سید گلفام شاہ صاحب قبلہ ہمارے ہر دل عزیز نعت خان فروغ والی صاحب دیگر جتنے بھی جو ہے قاری شفیق صاحب قبلہ غلام حیدر صاحب ساروں کے میں نام نہیں جانتا ہوں. میرے سامنے تشریف فرما جتنے بزرگان دین نوجوان ساتھیوں بچوں دور بیٹھ کے سننے والی میری ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لائٹ چلی گئی ہے آپ اس کی فکر نہ کریں آپ میری طرف توجہ رکھیں انشاءاللہ العزیز آپ تک آواز پہنچتی رہے گی. اور ویسے بھی میں بڑا دھیمے لہجے کا خطیب ہوں. بارہا میں اپنی تقریروں میں کہا کرتا ہوں کہ مجھے جو ہے آپ کی نعرے وغیرہ کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ صرف توجہ رکھیں. اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. بے شک اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد. بے شک. تو آپ سے جو ہے کوئی اور میں مطالبہ نہیں کروں گا. آپ توجہ رکھیں. دھوپ بھی کافی تیز ہے. گفتگو کو لمبا بھی نہیں کیا جائے گا. اور ہر کسی کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے اور ہر کوئی اپنے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے. میرا بھی ایک اپنا مزاج ہے. اور کیا کسی نے کہا تھا نصیب اپنا اپنا مقام اپنا اپنا. نصیب اپنا اپنا مقام اپنا اپنا کیے جاؤ میں خاروں کام اپنا اپنا. ہر بندہ ایک اپنا جو ہے وہ کام کرتا ہے. اللہ عز و جل نے یہ توفیق بخشی ہے کہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتی المقدور جتنا ہو سکے جتنی ہماری استطاعت ہے اللہ نے دے رکھا ہے وہی لوگوں تک پیغام پہنچا رہے ہیں. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق نصیب کرے. ہم مجلس سجا کے بیٹھے ہیں میلاد النبی کے نام سے. یہ ہماری مجلس ہے اور عقیقے کی بھی مجلس ہے. اسی نسبت سے رکھی گئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نام کی مجلس سجا کے میں اور آپ بیٹھے ہیں. صدیاں ہو گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس زمین پر جو ہے تشریف لائے تھے اور اس ظاہری دنیا سے جو ہے وہ تشریف لے بھی گئے. لیکن ہماری محفلوں کی رونقیں ہمارے محفلوں جلسوں کی جو ہے رنگتیں دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے کل ہی کوئی ان گلیوں سے گزر کے گئے. کسی نے کہا تھا زمین سے آسمان تک آسمان سے لامکاں تک ہے. زمین سے آسمان تک آسمان سے لامکاں تک ہے.
कहाँ खोले थे गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक। तज़किरा हमने किसी का होते हुए नहीं देखा जितना मेरे नबी का हो रहा है। गली गली हुजूर के नाम के तज़किरे हैं, चप्पे चप्पे पे हुजूर के जिक्र से खुशबुएं फैली हुई हैं। और जो है जब हुजूर का नाम आता है तो आशिकों के कलेजो जो हैं हुजूर के नाम से ठंडे हो जाते हैं। हुजूर का जब कोई नाम लेता है तो जुबान के अंदर ऐसे लगता है जिसे किसी ने शहद रख दी। पंजाबी के एक बहुत बड़े मशहूर शायर गुजरे, वो कहते हैं तेनू सीने दी में ठंड आखा, तेनू सीने दी में ठंड आखा, शहद गुलाब ते खंड आखा। हुजूर का नाम ऐसा है जब आता है तो सीने के अंदर ठंड पड़ जाती है। और हुजूर का जिक्र ऐसा है कि हर बंदे की जो है औकात ही नहीं है कि हुजूर का जो है जिक्र कमा हक को वो अदा कर सके। बंदे की औकात ही बंदा कर ही नहीं सकता है, बल्कि अल्लाह ने इतनी बुलंद व बाला शान रखी है कि जो है मोहम्मद अली ज़हूरी बहुत बड़े जो है मशहूर शायर गुजरे, वो कहते हैं असा की ज़हूरी नाले साडा की बयान है, ओदियां ते सिफतां दा नात खां कुरान है, सूरतां सिपारे रंग नबी दे जमाल दा, लब के ले आवा कि तू सोना तेरे नाल। तो मिला ही नहीं है ऐसा। हमने मशरिक से, हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं कि मैंने जो है सारी जगह छान डाली, मशरिक से मगरिब तक, मगरिब से जो है शिमाल से जुनूब तक, सातों आसमान मैंने छान डाले, हुजूर आपके जैसा तो मैंने किसी को पाया ही नहीं। और हजरत हसन इब्न साबित कहते हैं कल कमरी लैलतिल बदरी लम अरा कबलहू वला बादहू मिसलहू। कहते हैं हुजूर के ताल्लुक से पूछते हो, खुदा की कसम हुजूर का चेहरा तो 14वीं रात के चांद की तरह चमकता हुआ था। फिर कहते हैं नहीं 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 ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा, ना आज तक देखा है। पास में हजरत अबू हुरैरा खड़े होते हैं, कहते हैं कि देखते कैसे, अगर किसी माँ ने जन्म दिया होता तो देखते। खुदा ने वो पाना ही बन छड़िया जिंदे विच मुहम्मद नू डालिया। खुदा ने हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। इतना खूबसूरत किसी को बनाया ही नहीं। उस प्यारे नबी की इमामुल अंबिया के नाम की मजलिस सजा के हम बैठे हैं और हुजूर का जब जिक्र आता है तो आशिकों के जो कलेजे हैं, जो सीने के अंदर ठंडक पड़ जाती है और चेहरे जो हैं वो खिल उठते हैं। ये अहले ईमान की निशानी है कि जब उनके नबी का जिक्र आता है तो जो है उनके चेहरे रोशन हो जाते हैं, उनके चेहरे जो हैं वो खिल उठते हैं। मैं और आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस सजा के बैठे हैं। उससे पहले आपने जो है बहुत से उलमा इकराम से सुना होगा, बहुत से बयानात, मुख्तलिफ बयानात सुने होंगे। मैं 2-4 बातें जो है वो मुख्तलिफ तुरुक से आप हजरात के सामने रखूँगा, क्योंकि तफसीली गुफ्तगू के लिए इतना वक्त है नहीं। और वैसे भी जो है एक कुछ लोगों की आदत होती है बड़ी हार्ड गुफ्तगू करने की। अब मैं अज़हर में पढ़ के आया हूँ, अगर मैं आपके सामने अरबी में बात करूँ तो फिर ये मेरी बेवकूफ़ी है। अरबी पढ़ना एक अलग चीज़ होता है, उसका ट्रांसलेट करके, क्योंकि मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कल्लिमुन नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों की समझ के एतबार से गुफ्तगू। तो इंशाअल्लाह मुख्तलिफ तुरुक से जो है बड़ी आसान लफ्ज़ों के अंदर आप हज़रात के सामने कुछ बातें रखने की जो है वो कोशिश करूँगा। अल्लाह मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक जारी फरमाए। अकीके की मजलिस है, एक आधी हदीस जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुनते हैं अकीके के ताल्लुक से। हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया। हुजूर की बारगाह के अंदर भी जो है जब बच्चे पैदा होते थे तो वो हुजूर की बारगाह में जो है लाए जाते थे। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जब मेरे जो है वज़ाए हमल हो गया और बच्चा होने वाला था, तो जब बच्चा हुआ तो मैं आई मदीना शरीफ और खुबा नामी एक जगह थी, तो वहाँ पे जो है मैं उतरी और बच्चे की विलादत हुई। तो उसके बाद मैं अपने बच्चे को लेके गई और हुजूर की बारगाह में ले जाके मैंने बच्चे को पेश किया। तो मैंने जो है हुजूर की बारगाह में जब बच्चे को पेश किया तो हुजूर ने अपना लुआबे दहन निकाल के मेरे बच्चे के मुंह में डाल दिया। कितना नसीब होगा वो बच्चा जिसके मुंह के अंदर जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआबे दहन जो है वो डाला हो। हुजूर ने जो है वो दाखिल फरमाया। फिर जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खजूर का एक टुकड़ा लिया और उसको बोलते हैं जो है अपनी जुबान के अंदर जो बोलते हैं घुट्टी देना। हुजूर ने अपनी जो है दांतों के अंदर उस खजूर के टुकड़े को चबाया और फिर जो है हजरत अस्मा बिनते अबी बकर का जो बच्चा था उसके जो है वो मुंह के अंदर वो खजूर का टुकड़ा रख दिया। तो ये जो रिवायत हमारे यहाँ जो है बड़े बुजुर्गों से जो हम करते हैं, बच्चा जब पैदा हो जाता है कोई नेक बंदा जो होता है कहते हैं यार इसकी जो है घुट्टी इसको दिलाओ ताकि बच्चा जो है वो नेक हो। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर कहते हैं कि हुजूर ने खजूर का टुकड़ा भी उसके मुंह में रखा और फिर उसके बाद उसका नाम भी इनायत फरमाया। और यहूद व नसारा जो है मुझे ये कहा करते थे कि तुम कभी माँ बन ही नहीं सकती हो। तो उस वक्त मुझे जो खुशी हुई
تو وہ آج تک ویسی خوشی مجھے کبھی بھی نہیں ہوئی، ویسی مجھے خوشی ہوئی۔ اور وہ جو سارے کہہ رہے تھے کہ تم ماں بن ہی نہیں سکتی ہو، اور پھر ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ پہلا بچہ تھا جو اسلام کا اعلان ہونے کے بعد جو ہے جس کا حضور نے نام رکھا ہو، اور جس کے منہ میں جو ہے اپنا لعاب دہن ڈالا ہو، اور جس کے منہ کے اندر جو ہے اپنے منہ میں کھجور چبا کے حضور نے رکھی ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے بہت پہلے سے، اور حضرت امام حسن امام حسین کے تعلق سے بھی آتا ہے۔ حضور نے 7ویں دن جو ہے ان کا عقیقہ فرمایا، اور ان کا نام جو ہے وہ حسن اور حسین رکھا۔ یہ حضرت جبریل امین کی طرف سے جو ہے وہ نام جو ہے وہ بتائے گئے کہ یہ جنتی نام ہے، آج تک دنیا میں کسی کے نہیں رکھے۔ سب سے پہلے حسن اور حسین نام جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادے جو ہے ان کے نام جو ہے وہ رکھے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عقیقے کی مجلس ہے، سوچا ایک دو چیز جو ہے اس تعلق سے بھی بیان کر دوں۔ اور سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے آج کی ضرورت میں، ہمارا جو مقصد بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اگر کسی مسئلے پہ دھیان دیں تو وہ ہم دھیان دیں اصلاح معاشرہ پہ۔ معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو گیا، معاشرے کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی، جو بات بات پہ نئی نئی رسمیں پیدا ہو گئی ہیں، فضول خرچیاں جو ہو گئی ہیں، اور معاشرہ اور جو ہے غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، غریب بیچارہ مارا جا رہا ہے۔ غریب کے یہاں شادیوں میں دیکھو اتنا خرچہ آ گیا، عقیقے میں دیکھ لو، ولیمے میں دیکھ لو، اتنا خرچہ آتا ہے۔ اسلام نے ساری فضول خرچیوں سے جو ہے وہ منع کیا۔ اچھا، پہلے جو میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی اس کی طرف آتے ہیں، پھر انشاءاللہ وقت بچا تو کچھ باتیں جو ہے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ آج لوگ کہتے ہیں حضرت بڑے پریشان ہیں، دم کر دو، پانی پھونک کر دو، یہ سارا کر دو، بڑے پریشان ہیں، اور پریشانیاں جو ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اگر پریشانیوں سے نکلنے کا سبب تلاش کر رہے ہو تو قرآن کے دامن میں آ جائے، قرآن کو تھام کے تو دیکھو۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا حبل ممدود من السماء، یہ قرآن جو ہے تمہارے رب کی طرف سے لٹکتی ہوئی رسی ہے، جس کا ایک سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کبھی راتوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور پڑھتے ہوئے رونے کی عادت بنایا کرو۔ یہ قرآن جو ہے یہ دلوں کے میل جو ہے اس کو دور کر دیتا ہے، یہ پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، یہ جو ہے دل کے زنگ جو ہے اس کو مٹا دیتا ہے۔ داتا علی حجویری نے اپنے مریدوں سے کہا کہ بیٹو قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی عادت بنایا کرو، رونے جیسا منہ بنا لیا کرو۔ ایک مرید کہنے لگا حضرت رونے کی پھر بھی کوشش کریں، پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ داتا علی حجویری نے فرمایا بیٹے پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو، اتنے سنگ دل ہو چکے ہو، تمہاری آنکھیں آنکھوں کا جو ہے خراج پیش نہیں کرتی۔ قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، اور قرآن کے ساتھ اپنے دامن کو اتنا جو ہے دامن قرآن کا اتنا مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو کہ جو کبھی بھی کوئی دنیا میں گمراہ نہیں ہو سکتے۔ قرآن کو پکڑ کے تو دیکھو، آج ہر بندہ کہتا ہے حضرت میرے گھر میں ٹونا ہو گیا ہے، کوئی جنات ہو گیا ہے، کوئی شیطان ہو گیا ہے۔ کبھی قرآن کو ہم نے کھول کے دیکھا ہے؟ کبھی ہم نے قرآن کو نہیں کھول کے دیکھا۔ ذرا قرآن کو کھول کے تو دیکھیں آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ ہم نے قرآن کو صرف تاک کے اندر رکھا ہے سجا کے، کبھی کبھار اس کی جو ہے گرد بھی صاف نہیں کرتے، کبھی کبھار مدتوں میں اگر وقت مل گیا تو پھر ہم اس کو جو ہے چوم لیتے ہیں۔ آج سے 100-150 سال پہلے کا جو ہے واقعہ ہوگا کہ ہندوستان کی بات ہے، کسی جو ہے قبرستان کے اندر جب بارش آ گئی تو وہ قبر جو ہے کھل گئی۔ قبر جب کھلی تو لوگوں نے دیکھا کہ جو مردہ ہے اس کے نتنوں کے قریب گلاب اگے ہوئے اور خوشبو جو ہے وہ پھوٹ رکھی ہے، بہت خوشبو پھیلی ہوئی۔ لوگوں نے پتا کیا قبر کا ایسا کون سا بندہ ہے جس کی قبر کے اندر گلاب کھلے ہوئے، ایسا کون سا عمل کرتا ہے؟ لوگ اکٹھے ہوئے، جا کے گاؤں کے اندر پوچھا ایسی ایسی قبر ہے اور جو ہے اس طریقے سے معاملہ ہے، کون ہے؟ لوگوں نے بتایا وہ چلے جاؤ فلاں دروازہ ہے، وہاں پہ ایک گڑیا رہتی ہے، اسی کا شوہر ہے۔ گئے دروازے پہ دستک دی اور جا کے پوچھا کہ تمہارا شوہر ہے، ایسا کون سا عمل کرتا تھا؟ ہم نے اس کی قبر میں گلاب اگے ہوئے دیکھے، خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں۔ تو وہ گڑیا کہنے لگی اور تو مجھے کوئی عمل اس کا یاد نہیں ہے، ان پڑھ تھا، قرآن پڑھنا نہیں جانتا، لیکن ہاں مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا، دوسرے لوگوں کو جب قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا تو اس کو بڑا افسوس ہوتا تھا، کہتا تھا کاش میں نے بھی قرآن پڑھ لیا ہوتا، کاش میں بھی قرآن پڑھنا جانتا۔ آنکھوں سے آنسو آ جاتے، گھر میں آتا واپس، تاک سے قرآن کو اتارتا، اس کو کھولتا اور اس کو صاف کر کے اس کی ایک ایک انگلی پہ ہاتھ رکھتا، انگلی رکھتا اس کی ایک ایک لائن پہ، اور اللہ کی بارگاہ میں رو کے کہتا مالک میری بد نصیبی میں قرآن نہیں پڑھ سکتا،
मालिक मैं नहीं जानता इस तेरे कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो गुड़िया बताती है, वो एक एक सत्र पे ऐसे उंगली फेरता कहता मालिक ये भी हक है, मालिक ये भी हक है, मालिक ये भी हक है। और जितनी उसको तौफीक होती 2 सफ़े 3 सफ़े वो कहता, आंखों से आंसू जारी होते, फिर बंद करके रख देता, अपने काम पे चला जाता। यही उसका अमल था, उसके अलावा कोई अमल मुझे याद नहीं है। तो लोगों ने जो है वो मुलाहिजा किया कि अच्छा ये उसके अमल की वजह से है कि अल्लाह ने उसकी कब्र के अंदर खुशबुएं फैला रखी हैं। कुरान जो पढ़ना नहीं जानता, सिर्फ उंगली फेर रहा है, बोला ये भी हक है, ये भी हक है, तो अल्लाह उसकी कब्र के अंदर गुलाब उगा देता है। मुझे बताएं जो कुरान जो पढ़ना जानते और फिर उसको जो है पढ़ें और तन्हाई में बैठ के पढ़ें और फिर रोएं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुनिया भी बेहतर कर देगा, उनकी आखिरत भी बेहतर कर देगा। कुरान के साथ अपने आप को वाबस्ता करें। हजरत अब्दुल्ला तुस्तरी नाम के बुजुर्ग गुजरे, हजरत जंगल में रहते, लोग इकट्ठे होकर उनके पास पहुंच गए। कहा बाबा जी आप बड़े अजीब हैं, जंगल में रह के क्या कर रहे हैं, चले ना शहर में भी आपके जैसे लोग मिलेंगे, आपके जो है वो मुआफिकत वाले लोग मिलेंगे, यहाँ अकेले पड़े क्या कर रहे हैं। तो बुजुर्ग कहने लगे तुम्हें किसने कहा मैं अकेला रहता हूँ। कहा कहना किसने, हमने खुद देखा है आप जंगल में अकेले पड़े हुए, झोपड़ी बना रखी है, न कोई आपके आस पास है। कहा तुम गलत हो, मैं अकेला नहीं रहता, मैं तो हमेशा जो है अपने रब के साथ रहता हूँ। कहा जब मेरे को उसकी बातें सुनने को मन करता है तो मैं कुरान खोल के बैठ जाता हूँ, और जब अपनी बातें उसको सुनाने को मन करता है तो मैं नमाज में खड़ा हो जाता हूँ। तुम्हें किसने कह दिया मैं तन्हा रहता हूँ, मैं पल पल अपने रब के साथ रहता हूँ। तो कुरान एक ऐसी चीज है, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया तुम्हारे अंदर जो परेशानियां हैं, जो तुम दौड़ते फिर रहे हो, ये परेशानी हो। मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो बंदा जो है परेशान है और कहता है कि बड़ी परेशानियां हैं, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ते पैदा कर देता है। अगर परेशानियां हैं, अल्लाह से डरता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ते पैदा कर देता है। और आगे इरशाद फरमाया, क्या इरशाद, आज कहते हैं ना रिस्क में जो बरकत नहीं होती, आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगा। फिर आगे इरशाद फरमाया वयरज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, और तुम्हें वहां से रिस्क देगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा, तुम सोच भी नहीं सकते, अल्लाह वहां से तुम्हें रिस्क देगा। और आगे इरशाद फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, और जो अल्लाह पे भरोसा करता है उसके लिए अल्लाह काफी है। जो अल्लाह की जात पे भरोसा करता है उसके लिए अल्लाह काफी है, फिर उसे किसी के दरवाजे पे भटकने की जरूरत नहीं है, फिर उसके लिए अल्लाह ही काफी है। वो अपनी जरूरतों के जो है जब भी मुतालबा करता है वो अल्लाह से करता है, अल्लाह उसके मुतालबात को पूरा कर देता है। मैं और आप अपनी जिंदगी को नेकियों का नूर देने की कोशिश करें। जिंदगी बड़ी गुजारनी, पता ही नहीं ना मौत कब आ जाना, किसी को कुछ भी पता नहीं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जो हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम जो मौत के फरिश्ते हैं उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती थी। एक दिन बातों बातों में कहने लगे अच्छा इस्राइल जरा जब मेरे रूह कब्ज करने आओ तो मेरे पास पहले पैगाम भेज देना, मेरे पास पहले पैगाम भेज देना ताकि मैं मौत की तैयारी तो कर लूं। इस्राइल अलैहिस्सलाम ने वादा कर लिया कि हजरत जरूर जब भी मैं आपकी रूह कब्ज करने के लिए आऊंगा आपके पास जो है पैगाम जरूर भेजूंगा। अच्छा कुछ वक्त गुजरा, जब अरसा गुजर गया उसके बाद जो है हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम खिदमत में हाजिर हो गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद साहब, पूछा इस्राइल कैसे आना होगा। अर्ज करने लगे हुजूर कब्जे रूह के लिए आया, आपकी रूह कब्ज करने के लिए आया। कहा इस्राइल तुम तो बड़े बेवफा निकले, तुमने तो वादा किया था कि जो है मैं रूह कब्ज करने से पहले जो है आपकी तरफ कासिद भेजूंगा और तुमने कोई कासिद नहीं भेजा। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा हजरत मैंने आपकी तरफ बड़े कासिद भेजे थे, पहुंचे नहीं। का कौन से कासिद? का आपकी आंखों के सामने कितने जनाजे उठे, वो मेरा कासिद नहीं था तो और क्या था? वो मेरा कासिद ही तो था जो आपको पैगाम दे रहा था कि आज इसकी बारी है, कल तेरी भी बारी है, कल तूने भी जाना है। हजरत और जो है आपके सामने जो है कितने लोग बीमार हुए, आपको कभी जो है आंखें जो आपकी पहले इतना देख सकते थे अब कमजोर हो गई, घुटनों में वो ताकत नहीं रही। मर्ज का आ जाना, बालों के अंदर सफेदी का आ जाना, ये मेरे कासिद नहीं है तो और क्या है। हजरत उमर के ताल्लुक से भी तो आता ना, एक आपने बंदा रखा, एक बंदा हजरत उमर की बारगाह में आया और कहा उमर ये सारे मामला छोड़ और अल्लाह से डर। हजरत उमर एकदम से डर गए, कहने लगे यार तेरा बड़ा शुक्रिया तूने जो है मुझे अल्लाह का खौफ दिलाया। अच्छा ऐसा किया कर रोजाना आ जाएगा और रोजाना आके जो है मुझे अल्लाह का खौफ दिलाया कर, मैं महीने के बाद उसे तुझे तनख्वाह भी दूंगी, महीने के बाद
तुझे तनख्वाह भी दूंगा, तू मुझे। वो रोजाना आता, ला तनसा मौतक, या उमर ला तनसा मौतक, उमर अपनी मौत को मत भूल। हजरत उमर कांप जाते हैं। आज तो हमारे सामने इतने जनाजे उठते हैं, इतनी नौजवान मौतें होती है, किसी को कोई फिक्र नहीं करती, बस जिंदगी को जैसे गुजारे जा रहे। अच्छा, एक दिन वो बंदा आया, हजरत उमर ने तनख्वाह दी, तनख्वाह देने के बाद कहा कल से मत आना। कहने लगा हजरत क्या बात है, कोई गलती हो गई? बोला नहीं। तो क्या बात है, मौत का फिक्र नहीं रखा? बोला ऐसा भी मसला नहीं है। तो कहा हजरत फिर मामला क्या है, मुझे नौकरी से क्यों निकाल रहे हैं? तो कहा तू रोजाना मुझे आके जो है खबर देता था, उमर मौत को मत भूल, तुझे मरना है। अब तेरे आने की जरूरत नहीं, आपने ऐसे दाढ़ी में से एक सफेद बाल अलग किया और दिखाया, कहा ये खांसी आ गया। अब ये जो अल्लाह की तरफ से पैगाम देने वाला आ गया, अब यही मुझे रोजाना बताएगा उमर तूने मरना है, तेरी जिंदगी के दिन थोड़े रह गए। हमारे तो बाल सफेद हो गए, हमारा तो जो है बाल सफेद हो गए, घुटनों में ताकत नहीं ली है, नजरें कमजोर हो गई है, सारा कुछ हो गया, लेकिन फिर भी जो है मौत की फिक्र नहीं है, फिर भी मौत की फिक्र नहीं है। वो मियां मोहम्मद बख्श साहब ने क्या खूब कहा था, हड्डियां कंबन के गोडे खड़कर उड़ गया नक तेरा, अजय भी बदियों बाज ना आयो, जियो मर्द दिलेरा। तेरी इतनी उम्र हो गई है, 60 साल 70 साल 80 साल, जिंदगी का एक अच्छा खासा जो है वो पड़ाव गुजार चुका है, सारे कासिद तेरे पास आ चुके हैं, सारे साथ में आ गया, नजर कमजोर हो गई है, बाल सफेद हो गए हैं, घुटनों में ताकत नहीं रही है, चलते हुए ठोकरें लगने लगी हैं। एक साथ इतने कासिद रोजाना तेरे सामने जनाजे उठते हैं, फिर भी सीना चौड़ा करके दिलेरी के साथ ऐसे चल रहा है जैसे इसने अभी 1000 साल जीना है। मैं और आप हैं कहा? बुजुर्गान दीन की जिंदगियां तो पढ़े। आज हम ये कहते हैं कि फुला बुजुर्ग उस मकाम पे, फुला बुजुर्ग उस मकाम पे। इस्लाम जो हमें इतनी आसानी से मिल गया, उसका हमें कोई एहसास ही नहीं है, कोई हमें फिक्र नहीं है। हमारे बुजुर्गान दीन ने इतनी कुर्बानियां दी इस्लाम के लिए, अपनी जिंदगी को तपते हुए रेगिस्तान के अंदर जो है वो डाल दिया, और जिंदगी उनकी जो है वही हलाक हो गई। बुजुर्गान दीन को देखे, किसी को सर पे आरा रख के पांव तरफ चीर दिया गया, किसी को कहा इस्लाम से फिर जा, वरना जो है तेरे ऊपर जो है घोड़े दौड़ा दिए जाएंगे, हाथी दौड़ा दिए जाएंगे। हमें तो कोई परेशानी भी नहीं है ना, हमारी तरफ तो कोई तकलीफ नहीं है। हमारी अगर फसल पे बारिश ज्यादा हो जाए तब भी हम रोते हैं, बारिश नहीं हो तब भी हम रोते हैं। हमें तो जो है कहीं पे भी शुक्र नाम की चीज ही नहीं देगी, और फिर सोचते हैं घर बैठे बैठे अगर बस सारा कुछ ठीक हो जाए, सारी मुसीबतें पीर साईं साढ़े ती क्यों आती हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद के अंदर, जामा मस्जिद के अंदर जुम्मा पढ़ने गए, जब वापस निकले तो उनकी जूती नहीं थी। अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, मालिक तेरी बारगाह में हमेशा फिरता रहता हूँ, लोगों को दीन की दावत देता हूँ, और मैं जुम्मा पढ़ने के लिए आया, मेरी जूती गायब हो गई है। ये अल्लाह की बारगाह में शिकवा किया। थोड़ी देर आगे गुजरे, रास्ते में देखा एक बंदा बैठा, उसके पांव ही नहीं, फौरन भाग के वापस आए, मस्जिद में रब की बारगाह में सजदे में गिर गए। मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी तो जूतियां गई हैं, उसके तो पांव भी नहीं है। मैं और आप देखें तो सही, अल्लाह ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। अल्लाह ने हमें बंगले दिए, अल्लाह ने हमें गाड़ियां दी हैं, अल्लाह ने हमें जमीनें दी हैं, कितना कुछ नहीं दिया अल्लाह ने। फिर भी जो है हम हमेशा, जब भी अच्छा खासा बंदा है, 10 बीघे 20 बीघे जमीन है, इतना कुछ है, कभी भी पूछ लो हजरत क्या हाल है, कैसे चल रहे मामला, बस पीर साईं दाल रोटी वाले बढ़िया है, अभी इसके दाल रोटी वाले बन रहे हैं, ये इसकी इतना माल है इसके पास, इसकी 7 नस्लें खा सकती है, इतना सारा कुछ इसके पास है, फिर भी ये कहता है दाल रोटी वाले बन रहे हैं, बस टाइम पास हो रहा है। ये जब नाशुक्री तबीयतों के अंदर पैदा हो जाती है। मैं मजाक में कहा करता हूँ, पहले जब लोगों से आप पूछते थे ना, जो बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, एक जमाना था जब हमारे पास एक मकान होता था, ये बेरी का दरख्त खड़ा है, ये शहतूत का दरख्त खड़ा है, घर के अंदर होता था। दोपहर में लोग चारपाई लगा के वहां पे आराम कर लेते थे, एक वक्त की रोटी खा ली, और जो है शाम की नहीं खाते थे, चल जाता दोपहर में चाय पी के टाइम पास करना। पैदल चलते थे लोग, किसी की शादी ब्याह में जाना होता था तब भी लोग किसी से कपड़े मांग के ले जाते, यार मैं उसकी शादी में जाके आ रहा हूँ, जरा तेरा सूट दे बड़ा अच्छा है, तेरे जूते दे दे मुझे बड़ा अच्छा है। लेकिन उस वक्त बुजुर्गों से अगर कोई बंदा पूछता था क्या हाल है, तो वो लंबा हाथ करके कहता था हजरत अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। बॉडी लैंग्वेज उसकी ऐसे बताती थी कि अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मजाकन कहा करता हूँ कि आज जब लोगों से पूछते, पहले कहते थे शुक्र है, आज कहते हैं शुगर है, आज शुगर हो गई, और ये हकीकत है। मैं और आप देखें अल्लाह का शुक्र हम कितना अदा कर रहे हैं। हम कर कुछ भी नहीं रहे, ना दीन के लिए कुछ कर रहे हैं, ना अपनी कौम के लिए कुछ कर रहे हैं, और फिर भी ये सोचते हैं कि हम पर, और ये सोचते हैं कि हम पर जो है अल्लाह की रहमतें क्यों नहीं बरसती। अगर उनकी रहमत ना हो, दरमिया में अभी आग लग जाए दोनों जहां, हमारे जैसे करतूत आसमान से हम पे पत्थर बरसने चाहिए।
आग बरसनी चाहिए। हमने क्या कुछ नहीं किया, दीन का चेहरा हमने मस्त करके छोड़ दिया है। हमारे जो जिंदगी जीने का जो ढंग है, हम जो लोगों के साथ जो रवैयात है, जो लोगों के साथ हमारे मामलात है, वो जरा देखे तो सही, एक दूसरे के लिए दुख दर्द का सामान बना हुआ। फिर हम कहते हैं कि हजरत जिंदगी में खुशहाली नहीं है, बुजुर्गों ने इतनी इतनी कुर्बानियां दी हैं, तब जाके आज उनका नाम हुआ। हम आसानी से ये सोचते हैं कि इतनी आसानी से जो मकान मिल जाता है, ना, वो क्या किसी ने कहा था, जे तू चढ़िया उत्तेदार भी नहीं, जे तू बिकिया इश्क बाजार भी नहीं, एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, ते एडा सौखा लभदा यार भी नहीं। कई जंगल घाने पैंदे ने, कई दोज़ख लंघने पैंदे ने, जो ऐस मुल्लों भी मिल जावे और उस तो सस्ता व्यापार भी नहीं। कुछ समझ ना आवे लोकां नूं, ओका तो लाल शहीद करन, ओंदे हथ डिठी तलवार भी नहीं, पर ओंदा खाली जांदा वार भी नहीं। समझा क्या है मैं? जख्म पे जख्म खा के जी। जिंदाबाद जिंदाबाद।